اس سے پہلے ہم چند سبزیوں کے نام سیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ اور سبزیوں کے نام سیکھیں گے اور ایک مشق بھی کریں گے۔ تو چلیے اب مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ویجیٹیبلز، ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں۔ تو چلیے اب آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ کون سی سبزی ہے؟ اسے کہتے ہیں کالی فلاور۔ کالی فلاور یعنی پھول گوبھی۔ چلیے اب مل کر اسپیلنگ کو پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ CAULI، کالی، اور اس کے ساتھ جوڑ کر لکھتے ہیں FLOWER، فلاور، اور یہ مل کر بنتا ہے کالی فلاور یعنی پھول گوبھی۔ چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں گارلک یعنی لہسن۔ GARLIC، گارلک یعنی لہسن۔ چلیے اب اس سبزی کے متعلق بتائیے یہ کون سی سبزی ہے؟ اسے کہتے ہیں اسپینچ یعنی پالک۔ SPINACH، اسپینچ یعنی پالک۔ اور اب یہ بتائیے اس تصویر میں کون سی سبزی نظر آ رہی ہے؟ یہ ہے جنجر یعنی ادرک۔ GINGER، جنجر یعنی ادرک۔ چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ کون سی سبزی ہے؟ اسے کہتے ہیں کیپسیکم یعنی شملہ مرچ۔ اسے بیل پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ کیپسیکم کے اسپیلنگ کو مل کر پڑھتے ہیں CAPSICUM، کیپسیکم یعنی شملہ مرچ۔ اور اب یہ بتائیے اس تصویر میں کون سی سبزی ہے؟ یہ ہے کیوکمبر یعنی کھیرا۔ BER، یہ بن جاتا ہے کیوکمبر یعنی کھیرا۔ چلیے اب اس تصویر کو غور سے دیکھ کر بتائیے یہ کون سی سبزی ہے؟ اسے کہتے ہیں بیٹ روٹ یعنی چقندر۔ BEET، بیٹ، اور اس کے ساتھ جوڑ کر لکھتے ہیں ROOT، روٹ، یہ بن جاتا ہے بیٹ روٹ یعنی چقندر۔ چلیے ایک مرتبہ پھر اس سبق کو دہراتے ہیں۔ اس سب سے پہلی تصویر میں یہ کون سی سبزی ہے؟ اس ویجیٹیبل کا نام ہے کالی فلاور یعنی پھول گوبھی۔ اور اس تصویر میں یہ کون سی سبزی ہے؟ یہ ہے گارلک یعنی لہسن، بالکل ٹھیک۔ چلیے اب اس تصویر میں جو ویجیٹیبل نظر آ رہی ہے اس کا نام بتائیے۔ یہ ہے اسپینچ یعنی پالک۔ اور اس دوسری تصویر میں یہ کون سی ویجیٹیبل ہے؟ یہ ہے جنجر یعنی ادرک۔ چلیے اب اس رنگ برنگی سبزی کا نام بتائیے۔ اسے کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیپسیکم یعنی شملہ مرچ۔ چلیے اب اس دوسری ویجیٹیبل کا نام بتائیے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیوکمبر، بالکل ٹھیک کیوکمبر یعنی کھیرا۔ اور اب اس آخری تصویر میں یہ کون سی ویجیٹیبل ہے؟ یہ ہے بیٹ روٹ یعنی چقندر، بالکل صحیح۔ اب باری ہے ویجیٹیبل سے متعلق ایک مشق کی۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ Each time you see a picture, say and write the word. Each ہر، ٹائم مرتبہ، you آپ،
सी देखें, एक पिक्चर तस्वीर, से कहिए या बोलिए, एंड और राइट लिखिए the word loves. Each time you see a picture, say and write the word. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस मश्क में जहाँ भी आपको कोई तस्वीर नजर आएगी, आपने उस तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम बताना है और उस लफ्ज को लिखना है। यानी हर तस्वीर के सामने जो खाली जगह दी हुई है उस पर हम उस चीज का नाम लिखेंगे। शुरू करते हैं, आप भी पढ़िए। Vegetables are good for us. Vegetables सब्जियां, are हैं, good अच्छी, for लिए, us हमारे। Vegetables are good for us यानी सब्जियां हमारे लिए अच्छी हैं। अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ एक तस्वीर है। अब आपने बताना है कि इस तस्वीर में ये कौन सी वेजिटेबल है। बिल्कुल ठीक, ये है स्पिनच यानी पालक। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? हमने यहाँ लिखना है स्पिनच, लेकिन ये एक नया जुमला है और ये इस जुमले का सबसे पहला लफ्ज है। तो इसका पहला लेटर कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, इसे हमने लिखना है कैपिटल में। तो ये है कैपिटल एस। स्पिनच लिखने के लिए सबसे पहले आएगा एस, इसके बाद बाकी लेटर्स को हम स्मॉल में लिखेंगे। एस के बाद पी आई एन ए सी एच, स्पिनच। आगे पढ़ते हैं। स्पिनच मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। स्पिनच पालक, मेक्स बनाता है, अस हमें, स्ट्रॉन्ग मजबूत या ताकतवर। स्पिनच मेक्स अस स्ट्रॉन्ग यानी पालक हमें ताकतवर बनाती है। अब अगला जुमला, और हमारे पास है ये एक तस्वीर और ये है बंद गोभी की तस्वीर। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैबेज यानी बंद गोभी। तो अब हमने इस खाली जगह पर क्या लिखना है? कैबेज। लेकिन ये भी एक नया जुमला है और ये लफ्ज इस जुमले का पहला लफ्ज है। तो इसका पहला लेटर कैसे लिखेंगे? कैपिटल में, जो कि है कैपिटल सी। बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। सी के बाद ए डबल बी ए जी ई, कैबेज। आगे बढ़ते हैं। कैबेज एंड अब हमारे पास एक और तस्वीर है और ये क्या है? ये है पीज यानी मटर। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? पीज। क्या अब की बार भी हमें पीज के लफ्ज को कैपिटल लेटर से शुरू करना है? जी नहीं, क्योंकि ये लफ्ज इस जुमले के दरमियान में आ रहा है और ये एक कॉमन नाउन है। तो तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखा जाएगा। सबसे पहले लेटर पी, इसके बाद ई, ए और एस, ये बन गया पीज यानी मटर के दाने। आगे बढ़ते हैं। आर ग्रीन बट, और अब ये है एक और सब्जी की तस्वीर। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं ब्रिंजल यानी बैंगन। इस तस्वीर में ये तादाद में एक से ज्यादा है और यहाँ इस ब्लैंक के बाद लिखा है आर का लफ्ज, जो कि तादाद में एक से ज्यादा चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका मतलब है हैं। तो यहाँ हम ब्रिंजल का प्लूरल लिखेंगे। प्लूरल यानी जमा। तो ब्रिंजल का प्लूरल होता है ब्रिंजल्स। तमाम लेटर्स को कैसे लिखना है? स्मॉल में, क्योंकि ये लफ्ज भी इस जुमले के दरमियान में आ रहा है। सबसे पहले स्मॉल बी, बाकी के लेटर्स भी स्मॉल में लिखने हैं। बी के बाद आर, आई एन जे ए एल और फिर एस, ब्रिंजल्स। इसके बाद है आर और फिर पर्पल। कैबेज यानी बंद गोभी एंड और मटर, पीज यानी मटर। आर है ग्रीन सब्ज
बट लेकिन, ब्रिंजल्स यानी बैंगन, आर हैं पर्पल यानी कासनी रंग के। कैबेज एंड पीज आर ग्रीन बट ब्रिंजल्स आर पर्पल यानी बंद गोभी और मटर सब्ज रंग के होते हैं लेकिन बैंगन कासनी रंग के होते हैं। अब आखिरी जुमला अब हमारे पास इसके बाद ये है एक सब्जी की तस्वीर। ये क्या है? ये है टमेटो यानी टमाटर। तो अब हम इस खाली जगह में लिखेंगे टमेटो, TOMATO, टमेटो यानी टमाटर। आगे पढ़ते हैं। इज है राउंड गोल, एंड और और ये है एक और सब्जी की तस्वीर और इसे कहते हैं कैरेट यानी गाजर। तो यहाँ हम लिखेंगे कैरेट। जैसा कि टोमेटो के लफ्ज के तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखा गया था क्योंकि ये जुमले के दरमियान में आ रहा है ये लफ्ज, इसी तरह से कैरेट के तमाम लेटर्स को भी स्मॉल में लिखेंगे। CARRO और फिर T, और इसे हमने सिंगुलर में यानी वाहिद लिखा है क्योंकि इसके बाद लगा है लफ्ज इज यानी है, जो कि तादाद में सिर्फ एक चीज के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ भी हमने अ टमेटो लिखा था क्योंकि ये तादाद में एक है। अ टमेटो यानी एक टमाटर। अ टमेटो इज राउंड एंड अ कैरेट इज लॉन्ग यानी एक टमाटर गोल होता है और एक गाजर लंबी होती है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि टमाटर गोल होता है और गाजर लंबी होती है। और इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई है। अब आप इन सब्जियों की पहचान और इनके नामों के स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।